দর্পণ বিনোদন সবার জন্য। সঞ্জয় শ্রীবাস্তব বম্বে থেকে এসছেন। অসাধারণ কাজ, পুরো ঘরটা আলো হয়ে গেছে এবং মোস্টলি সুরিয়ালিস্টিক কাজ। কিছু কিছু কাজ আবার একটু অন্যরকম, আমার ঢুকে অসাধারণ লেগেছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে কালচারাল মেলবন্ধন, যেটা খুব প্রয়োজনীয়। আমাদের শিল্পীরা বম্বে যাচ্ছেন, বম্বে শিল্পীরা এখানে আসছেন এবং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হচ্ছে, সেটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। প্লাস যারা ছবি দেখবেন তারা শুধু কলকাতার ছবি নয়, কলকাতার আর্টিস্টদের ছবি নয়, বিভিন্ন বাইরের শিল্পীদের ছবি দেখুন। আপনারা যারা এই প্রোগ্রামটা দেখছেন তারাও আসুন একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে, অসাধারণ একটা প্রদর্শনীর সাক্ষী হন। নমস্কার, আমি মুম্বাইয়ের সঞ্জয় কুমার শ্রীবাস্তবের একক এক্সিবিশন দেখতে এসেছি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে। অসম্ভব একটা অভিজ্ঞতা, অসম্ভব। কারণ এখনও সঞ্জয় নিয়মিত কাজ করেন খুব ধৈর্য ধরে, লেয়ার আফটার লেয়ার, এবং অয়েল মাধ্যমটাকে ব্যবহার করেন। অয়েল মাধ্যমটাকে অধিকাংশ আর্টিস্টরাই অনেক দিন আগেই প্রায় বাতিলের খাতায় করে দিয়েছে, কেননা তারা ছবির পেছনে তেমন সময় দেয় না, আর অয়েলের মাধ্যমটাকে ভালো করে আয়ত্ত করতেও চায় না। অ্যাক্রিলিকে খুব তাড়াতাড়ি করে একটা এফেক্ট এনে ফেলা যায় এবং অ্যাক্রিলিকের স্থায়িত্ব অনেক বেশি, কারণ ওর মধ্যে টেকনিক্যালিটিস কম, কারণ সম্পূর্ণটাই সিনথেটিক। অয়েল কালার যখন করছে তখন অয়েলের ব্যবহারটা জানতে হয়। সেই ব্যবহারটা আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে অয়েলেই কাজ করতে আমরা শিখেছিলাম আর্ট কলেজ থেকে। তারপরে আস্তে 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 অয়েলে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে। সেইখানে একটা ঘরে এতগুলো ছবি রয়েছে অয়েল পেন্টিংয়ে, এবং অসম্ভব সুন্দর ড্রয়িংয়ের তার জোর, অসম্ভব রঙের বিন্যাস চমৎকার। যারা এই এক্সিবিশন দেখবে তারা দেখেই বুঝতে পারবে যে কি চমৎকার রঙের খেলা খেলেছেন উনি, এবং ধৈর্যের সঙ্গে। ওনার ছবিতে এসছে নানান রকম বিষয়, সমাজের নানান জটিলতাকে উনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন, সমাজের নানান অবক্ষয়কে উনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। ওনার অজান্তে বা অজ্ঞাতেই হয়তো এসে পড়েছেন অনেক মহাপুরুষের ছবির একটা ছায়া, কিন্তু সেটা আসবেই, কারণ যেহেতু আমরা অনেক পরে এসে জন্মেছি পৃথিবীতে, তার আগে এই মহিরুহরা অনেক কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, তাদের অ্যাভয়েড করা যায় না। মানুষের অজান্তে এসে পড়েন পাবলো পিকাসো, এসে পড়েন মাতিস, এসে পড়েন সালভাদর ডালি। এর মধ্যে তেমন কোনো দোষ নেই। এটা আত্মীকরণ, এটাকে অনুকরণ বলা যায় না, আত্মীকরণ। এই আত্মীকরণের মধ্যে দিয়ে উনি প্রকাশ করেছেন নিজের ভাষাকে, নিজের কথাকে, এবং আস্তে 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 রূপ পাচ্ছে ওনার নিজস্ব শৈলীও। আমার বিশ্বাস আগামী দিনে উনি ওরকমই একজন মহিরুহতে পরিণত হবেন, একজন বিশাল আর্টিস্টে পরিণত হবেন। আজকে উনি অঙ্কুরিত, মধ্যবয়স্ক, কিন্তু একটা সময় আসবে ওনার অভিজ্ঞতা ওনাকে আরও অনেক উপরে নিয়ে যাবে, এবং আমার সেই শুভকামনা নিশ্চয়ই থাকবে। খুব ভালো লাগলো, মুম্বাই থেকে এসছেন, বন্ধুর মতো আচরণ, খুব সুন্দর মিশুকে ব্যবহার, আমার খুব ভালো লাগলো। আমার ওনার জন্য অনেক শুভেচ্ছা আগামী দিনের দেওয়া রইল। আগামী দিনে আমি ওনাকে অনেক উপরে দেখতে চাই, অনেক অনেক উন্নত স্থানে ওনাকে আমি দেখতে চাই। এই আশা নিয়ে আমি আজকে শেষ করছি। ওনার এই এক্সিবিশন সাকসেসফুল হোক, মানুষ দেখুক, ওনার ছবি বিক্রি হোক, মানুষ ঘরে সংরক্ষণ করে রাখুন, আমি এটা চাইব। নমস্কার। একাডেমিতে এসে সঞ্জয় শ্রীবাস্তবের কাজ দেখে বেশ ভালো লাগলো। সব কটা ছবি, অনেক ছবি ছোট বড় মিশিয়ে সব কটা ছবি মোটামুটিভাবে অয়েলে করা, অয়েলের হ্যান্ডলিং খুব ভালো। এবং সঞ্জয় তো প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বম্বের, এবং কলকাতায় বললো যে এটাই ওর প্রথম সোলো শো। এর আগে গ্রুপ শো করেছে কিন্তু সোলো শো করেনি। সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওর পুরো বডি অফ ওয়ার্ক কলকাতার মানুষ দেখতে পাবে, এবং আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে প্রত্যেকে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। ওর হ্যান্ডলিং খুব ভালো, ওর সাবজেক্ট ম্যাটার সুরিয়ালিস্টিক, একটুখানি সালভাদর দালির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়, কিন্তু তাও কন্টেম্পোরারি। বর্তমান সমাজের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, গল্প আছে, সমাজ চেতনা আছে, সব কিছু মিলিয়ে ভালো ছবি। আমি অজয় দে, আমিও ছবি আঁকি, আর দীর্ঘ 35 বছর আমি বম্বে প্রবাসী।
তবে সঞ্জয় কুমার যার শো হচ্ছে তাকে আমি অনেক তাকেও প্রায় 30 বছর ধরে চিনি, আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু আজকে বিশেষ কারণে আমার এখানে আসা, আর তার সাথে তার ছবি দেখার একটা সৌভাগ্য হলো। আর ছবির বিষয়ে যদি বলতে হয় তাহলে আমার মনে হয় একটু সুরিয়ালিস্টিক একটা সালভাদর দালির একটা প্রভাব রয়েছে। আর ও যথেষ্ট সফল একটা শিল্পী, স্পেশালি বম্বেতে। আর তাছাড়া অ্যাজ এ ব্যক্তি, অ্যাজ এ মানুষ হিসাবে ওকে আমার খুব ভালো লাগে। দীর্ঘ 30 বছর আমাদের পরিচয়, আমরা প্রায় একসঙ্গেই কেরিয়ার শুরু করি। আরও একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আমি গৌরব বংদর্পণের পর্দায় আজ বিকেল প্রোগ্রাম নিয়ে চলে এসেছি। আজকের বিকেলের প্রোগ্রামে আমরা একজন খুব ইন্টারেস্টিং আর্টিস্টকে সাথে পেয়েছি, যিনি হচ্ছেন সঞ্জয় কুমার শ্রীবাস্তব। তিনি মুম্বাই নিবাসী, মুম্বাই থেকে এসছেন। কলকাতাতে তার প্রথম শো হচ্ছে এবং একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে সেই শো আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। আর আমাদের বংদর্পণের পর্দায় তো আপনারা শোটা দেখতেই পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমরা নর্থ গ্যালারিতে বসে আছি একাডেমি, এবং আমার পাশেই বসে আছেন সঞ্জয় কুমার শ্রীবাস্তব, যার তুলির মূর্ছনায় উঠে এসছে স্যারিয়ালিজমের এফেক্ট, এবং তার পেন্টিংয়ের মধ্যে সমকালীন সমাজের যে যন্ত্রণা, যে চাওয়া পাওয়া, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সরাসরি চলে যাব শিল্পীর কাছে, তার শিল্পকর্মের ব্যাপারে কিছু জেনে নিই। চলুন। संजय जी, आपको तो फर्स्ट डे कोलकाता में शो हुआ है, अब ये शो एकेडमी से चल रहा है नॉर्थ गैलरी में, तो आपको कैसा लगा? हमें एक्चुअली में इस शहर का ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एंड इस एग्जीबिशन में जो लोगों ने इंटेलेक्चुअल रिस्पांस दिया पेंटिंग्स को एक्चुअली, एंड बहुत सारे सजेशंस भी आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पॉजिटिव रिस्पांस दिया लोगों ने। एंड उनको जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था, सोशल कन्फ्लिक्ट के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, सोशल पॉलिटिकल सप्रेशन के बारे में, मेरा पेंटिंग में रिफ्लेक्शन है उसका। तो दैट इज़ वाई लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, एंड पीपल रिस्पॉन्डेड टू पेंटिंग इटसेल्फ। वो मेरे से तो बाद में बात किया, लेकिन उन्होंने पेंटिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया इंटेलेक्चुअल लेवल पे। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आए यहाँ पे, आर्टिस्ट आए, कॉमन मैन आए यहाँ पे। तो इवन कॉमन मैन का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बिकॉज वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हो करके भी उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सप्रेशन से हर आदमी कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ माइंड में है, वो उसमें से उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो दैट इज़ वाई वो पेंटिंग से कनेक्ट करता है अपने आप को, क्योंकि समवेयर उस पेंटिंग के पीछे उसकी अपनी कहानी छुपी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। दैट इज़ वाई लोगों ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। एंड स्पेशली कोलकाता में जिस तरह का रिस्पांस मिलता है, मतलब पेंटिंग को लेके गंभीर रिस्पांस, सीरियस रिस्पांस मिलता है, एंड सिंसियर क्रिटिसिज्म मिलता है। तो वो चीज़ इस एग्जीबिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। स्पेशली एक आर्टिस्ट होकर के ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जानना कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे मैं भी कुछ लर्न कर सकूं। तो दिस वॉज द वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी हैविंग दिस शो हियर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़, कुछ लोग पूछ रहे थे टेक्निक सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सारी पेंटिंग्स बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक सीरीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लिया तो उस पर एक सीरीज़ करेंगे। तो वो चीज़ मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान की। अभी एज सुन एज पॉसिबल मैं यहाँ पर एक दूसरा बड़ा शो करूँगा, देन आई विल ब्रिंग माई लार्जर वर्क्स हियर। तो उसमें स्पेशली वो सीरीज़ रहेगी रेड लाइट एरिया में, बिकॉज उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज इट वाज इंस्पायर्ड बाय सोनागाची। तो
तो मैंने थोड़ा सा झलक देखा है उसका, लेकिन आई हैव नॉट येट मतलब डीप स्टडी नहीं किया है अभी। तो वो डीप स्टडी करने के बाद मैं उस पर पूरा सीरीज करूँगा एंड आफ्टर एन ईयर अभी गैलरी बुक करूँगा और एक वो अपना जो है जो मैसिव 25 पेंटिंग 26 पेंटिंग का वो सीरीज यहाँ लेके आऊँगा। बिकॉज लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत सीरियसली लेते हैं आर्ट को। एनीवेयर आई गो टू हैव माई शो तो लोग वहाँ पे भी अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई वो, लेकिन यहाँ पे जो एक क्रिएटिव टॉक होती है ना, क्रिएटिव बातें होती हैं सब्जेक्ट को लेके, कॉम्पोजिशंस को लेके, कलर वो टेक्निक को लेके, कलर एप्लीकेशन को लेकर के, इट वाज फैंटास्टिक। मतलब मैं इसको बहुत वर्ड्स में बोल नहीं सकता हूँ, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस हुआ है। एंड एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर तो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आपको जो ये नॉर्थ गैलरी में बहुत सारी पेंटिंग है, वो टोटल पेंटिंग का ही एक सेरियलिज्म इफेक्ट हम देख रहे हैं। तो ये सेरियलिज्म इफेक्ट आप किस लिए पेंटिंग में? सरियलिस्टिक इसलिए आ जाता है कि ये एक मेंटल इमेजरी है। मेंटल में जो इमेज बनता है, सपोज मैं कहीं पे जा रहा हूँ ऑन द वे और कोई एनीथिंग, कोई भी चीज़ सडनली माइंड को स्ट्राइक करती है, इंस्पायर कर देती है, तो वो इमेज जब मैं स्टूडियो पहुंचता हूं तो घर जाते जाते उसका फॉर्म जो है बहुत चेंज होता है। वो एग्जैक्टली वो रियल, क्योंकि ये फोटोकॉपी नहीं है, पेंटिंग इज नॉट फोटोकॉपी कि मैंने जो देखा उसको एग्जैक्टली वैसे ही पेंट कर दूंगा। इट इज द रियलिटी, इट इज अ रियलिटी विच बिकम्स surreal, it becomes super when I go to paint it. It takes a different form and it becomes more intense because it, you know, it revolves within my mind. ये मेरे माइंड में रिवॉल्व करती रहती वो चीज़, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो जो एक डिस्टर्बेंस है या एक अच्छी फीलिंग भी हो सकती है, तो वो एक जो नया फॉर्म लेती है। बिकॉज एनी पेंटर, एनी राइटर, एनी पोएट, जो चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती, लाइक पोइट्री में इफ यू सी समटाइम्स दे से उसका चेहरा चांद जैसा है। चांद और चेहरे का तो एक सिमली मेटाफर है। तो सिमली मेटाफर जो है वो हम बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं, जैसे आईज का सिंबल मैंने लिया। आईज तो एक्चुअली में ह्यूमन हेड में होती है, ह्यूमन फेस में दिखती है, लेकिन इसको मैंने सप्रेशन के फॉर्म में यूज किया है कि हाउ द सोसाइटी इज बीइंग सप्रेस्ड बाय द पावरफुल पीपल एंड दे हैव टेकन आउट देयर विजन। विजन मीन्स आईज, आईज इज वेरी कंसर्न्ड विद द विजन। तो इट इज नॉट ओनली विजन, इट इज देयर थिंकिंग प्रोसेस। दैट इज दैट रियलिटी कन्वर्ट्स इनटू surrealism, that becomes super realist, which have not already been existed in this world. So मैं मानता हूँ कि जो चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, जो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जैक्टली फोटो रियलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, सररियलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं इमेजेस लेता हूँ सोसाइटी से ही, उनका पेन लेता हूँ, उनकी डिफरेंट फीलिंग्स लेता हूँ, आई पेंट दैट। बट व्हेन इट कम्स इनटू द क्रिएटिव वर्ल्ड, when it, you know, it comes into the mind, it inspires me, it takes a different form and that gradually gets converted into painting. जो समाज से ये जो छवि पिक्चर आपको ब्रेन लेते हैं, उसके बाद वो पिक्चर को आप कैनवास में पेंट करते हैं, तो वो जो डिफरेंस है आप सोसाइटी थे जो देखता है, उसके बाद ब्रेन में वो पिक्चर लेते हैं, उसके बाद आप कैनवास में वो पेंट करते हैं,
ये जो टोटल एक प्रोसेस है ना, प्रोसीड्योर है, उसका भी कोई ये जो थिंकिंग का उस टाइम में कोई चेंजेस की आता है? हाँ, उस टाइम में चेंजेस ये आता है कि समटाइम्स बहुत बार इंस्पायर्ड होता हूँ, लेकिन वो उतनी पावरफुल इंस्पिरेशन नहीं होती। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा इधर उसका झलक देखा है, सोनागाची के मैं पास हो रहा था, आई वॉज पासिंग थ्रू, आई सॉ दैट प्लेस एंड ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम देयर। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन कि उस पर 25, 30, 40 कितना पेंटिंग बनेगा मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन बिकॉज दैट द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ is very different from the life of the common man who is living in a very common society, very general society. Because what they are facing हम लोग को ज़्यादा पता भी नहीं है। वो लोग तो जो उधर रहता है उस एरिया में, only they know that what kind of reality they are facing, very hard reality they are facing. Their psyche is different. उनका साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाता है। वो हमारे आप जैसे एजुकेटेड लोगों का साइकोलॉजी से बहुत डिफरेंट होता है, आप समझ रहे हो? तो आई हैव टू मेक दैट स्टडी, तो दैट इंस्पिरेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो सरलिज्म होगा तो हो सकता है कि आई कैन पेंट अ वुमन विथ 3 heads हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू शो देयर पेन, टू शो देयर साइकोलॉजी, to express my feeling. So it may take a different changes because it gets intensified. जब पेंट करता हूँ ना तो वो इमोशन एकदम हाई लेवल पे इंटेंस होता है। And when I start painting, I never planned the painting like a, you know, many artists do drawings, this and that, they do a lot of plannings. Here I will put this color, there I will put this color. I don't do. I simply take a plain canvas, I try to meditate and recollect the images, inspiring images from, you know, from my mind. I meditate upon that. I sit in front of the canvas, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ and I try to meditate. I shut my eyes and try to meditate. तो वो इमेजेस जिस फॉर्म में कनेक्ट होती हैं, आप समझ रहे हो, कभी टूटी हुई होती है, उसके साथ कुछ और चीज़ें जुड़ जाती हैं। अभी जैसे दिस पेंटिंग इज ऑन मदरहुड, this one is on motherhood. I have seen a kind of fetus stuck on the back of the mother because mother tries to protect her fetus. उसको इतना वो रहता है कि अल्टीमेट हो तो वो somehow she tries to hide it. It creates a sense of protection कि जिसको वो जन्म देने जा रही है उसको how she protects, it's her psyche and the way she gives birth, it is given by nature. It is a part of nature. The way we take birth, it is a part of nature. It is a creation of nature. We are simply medium of it. Do you understand what I am saying? So that is why I have painted this painting. I had a sense of, you know, I have seen a woman, you know, at the time of, you know, pregnancy. I could realize her psychology. How she is very conscious about her fetus she's having in her, you know, womb. So that psychology I tried to capture and paint it this way. So automatically the imagery adds a lot of different symbols to it and it deletes also, which I don't require for my, you know, creation. So इस तरह से इमेज बनता है, बिगड़ता है और देन जब फाइनल वो चीज़ आता है तो आई स्टार्ट पेंटिंग, यू नो, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, इन माई मिस्टेक, बट आई डोंट प्लान दैट ये फिगर यहाँ ड्राइंग कर दिया, इसका ये कॉम्पोजिशन बना दे. नो, इट ऑटोमेटिकली कम्स लाइक ए पोएट्री. पोएट्री यू कांट राइट,
ये ऑटोमेटिकली लिख जाती है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर हर आदमी को नहीं बना सकते, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट इज गिफ्टेड बाय नेचर टू यू। आप बात समझ रहे हो ना मेरा? तो ये आप पोइट्री सोच के नहीं लिख सकते, इट कम्स ऑटोमेटिकली आता है, एंड यू जस्ट वर्ड्स आर द बॉडी ऑफ द पोइट्री। इट कन्वेज a kind of feeling, a kind of imagination to the public. It has a body of words. When you read it, you get the feeling of the poet. At whatever level you have the sensibility, you get the feeling of the poet. So ऐसे होता है। आपको पेंटिंग में हम देख रहा है साइडिलिज्म तो है, उसके बाद फॉर्म है, स्पेस डिवीजन है। ये जो स्पेस डिवीजन और फॉर्म, ये आप साइडिलिज्म के साथ कैसे मार्च करते हैं? मैच करते हैं। ये एक्चुअली में मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इमेज एनीथिंग मे इंस्पायर मी। सपोज I see someone who a poor man who is having food on the roadside. वो रोड साइड में खाना खा रहा है। अब कभी कभी लगता है कि उसको देखता हूँ, जो उसका स्ट्रगल है, उसके लिए वो ही काउंट्स व्हाट ही इज हैविंग। ही इज हैविंग 4-5 रोटीज, वॉट एवर ही इज हैविंग, ही हैज स्ट्रगल्ड ए लॉट। तो उस इमेज को देख के जो उसका स्ट्रगल है ना, वो मेरे सामने, मेरे आइज के सामने पहले आ जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? तो दैट इज़ वाई वो जब देखता हूँ ना, तो मुझे उसके साथ में बहुत सारा कुछ भी दिखता है, कुछ डिफरेंट इमेज अटैच हो जाती है, कुछ डिफरेंट सिंबल्स आ जाते हैं जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो इमेज तो सेंटर फिगर बन जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें, जो उसके बैकग्राउंड में एक ब्रोकन विंडो आ गया, आप समझ रहे हो? तो वो ब्रोकन विंडो उसका लाइफ की कहानी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दैट इज ब्रोकन। इट इज ए काइंड ऑफ सिंबल दैट इज वेरी सिमिलर टू हिज लाइफ। तो वो जुड़ जाता है, एंड जो चीज़ें उसके साथ नहीं जा रहा है, वो अपना स्पेस छोड़ देता है। आप समझ रहे? दैट इज वाई इट हैपन। एंड स्पेस इज अ थिंग, व्हेन आई स्टार्ट पेंटिंग आई नो हाउ टू क्रिएट फॉर्म एंड हाउ टू हैव अ लिटिल रिदम विद द फॉर्म, हाउ टू लीव द स्पेस टू ब्रीथ द इमेज। कि इमेज को भी तो ब्रीथ करना है ना, उसका साइड में स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो कंजेशन फील होगा। तो दैट ऑटोमेटिकली हैपन्स। इट इज़ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस। अच्छा, आप तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बीएफए कंप्लीट किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएफए कंप्लीट किया है, उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स भी कंप्लीट किया है। तो ये जो दो, एक बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, यूनिवर्सिटी का लाइफ आप थोड़ा सा हमको, दर्शक को बता दीजिए। एक्चुअली I have, from my childhood, my father was, masters in English literature that time. He was very fond of literature, and fortunately, he has read a lot of Bangla Sahit. He has introduced me to the Bangla Sahit from my childhood. तब से मैं शरद चंद्र टैगोर, बंकिम और ये आशापूर्णा देवी, इन लोगों को पढ़ता था। वो बोलते थे नहीं पढ़ो, तुमको कुछ अच्छा बनना है तो पढ़ो इसको। तो हम लोग, वो है मुंशी प्रेमचंद है, देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स। तो उनको पढ़ने के बाद ना मुझे एक सर्टेन फीलिंग डेवलप हुआ कि मैं कुछ छोटी छोटी पोएम्स लिखने लगा, कुछ वो करने लगा। एंड पेंटिंग फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा शो होता है, ये बिकता है, क्या होता है, मुझे आई डिडंट नो, बट करता था। तो मेरा प्रोसेस शुरू हुआ वहाँ से। पेंटिंग जर्नी मेरा बचपन से वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मैं उसके अलावा
कुछ बेस्ट कर नहीं सकता था. माई आंट एंड माई मदर, सम एज यूजुअली हैपन्स, मेरी आंट एंड मेरी मदर ने फोर्स किया कि यू बिकम ए यू नो डॉक्टर, एन इंजीनियर और यू नो IAS ऑफिसर. They have forced me to become. But my father was very sensitive. He told me, no, तुम लोग समझता नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है, उसमें जर्म्स है पेंटिंग का, करने दो उसको. एंड ही हैज़ इंट्रोड्यूस मी टू वॉन गॉ, माइकल एंजेलो, एल ग्रेको एंड लॉट ऑफ इंडियन पेंटर्स ऑल्सो, यामिनी राय एंड नंदलाल बोस और these artists. He said, you should see the paintings of them. Go to museum here and there. So I went to Delhi, I saw the modern art, this and that. Before starting my 10th standard. Then gradually मुझे समझ में आया कि it is very serious thing, and वहाँ से मेरा journey start हुआ. And I was very poor student, very third division everywhere. Then I have, my father said कि no, you should do BFA and MFA. तो उसके बाद MFA की, BFA किया, MFA किया. And my cousin brother was in Mumbai that time. He was captain in Navy. So he asked my father to send me to Mumbai. So at the very early age I came to Mumbai and started struggling. So 5-6 years was very bad time I have faced, and I was very confused. I couldn't understand ki what to do next. So gradually I had my first show in Jahangir. There 2 promoters I got, Mr. Harsh Goenka, the owner of the Seat Tire, and HMV. And later on he could come to know. And first Mr. Vikram Sethi, he could saw my work. He said, you come to my office. I went to his office, and तब से मेरा जर्नी जो है स्टार्ट बहुत अच्छे से हुआ. एंड ही स्टार्टेड प्रमोटिंग मी. आपको तो BFA MFA कंप्लीट किया है, आर्ट कॉलेज को कुछ स्टोरी हम लोग को बताइए. आर्ट कॉलेज का स्टोरी कुछ ऐसा है कि इन माय क्लास, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो. इन माय क्लास एक्चुअली में माय टीचर, आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट एक्चुअली. मुझे आर्ट फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था. तो मैं क्या करता था कि टीचर चले आते थे, कभी नहीं आते थे. व्हेन आई हैव सॉ द क्लास की टीचर इज़ नॉट देयर, तो सारे स्टूडेंट्स क्लास के, क्योंकि फिलॉसफी एस्थेटिक्स समझना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. कांट, हीगल, क्रोचे, ऑल दीज फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, भरत मुनि एंड ऑल. तो मैं इतना इन सबको स्टडी करता था कि फ़िलॉसफी पे जब कोई बात आती तो सारे स्टूडेंट्स मुझे घेर के बैठ जाते थे और मैं उनको टीचर की जगह टीच करता था. तो प्रॉब्लम इज़ कि वो टीचर का नहीं सुनते, तो मेरी बात मेरी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे. तो दिस वे मैंने आर्ट को शुरू से बहुत सीरियसली लिया था, इवन क्लास में भी. तो इसके बाद आप एग्जीबिशन स्टार्ट किया है कॉलेज को पास करने के बाद. हाँ, नहीं, ड्यूरिंग द क्लासेस आई हैव स्टार्टेड हैविंग माय शो, ग्रुप शो, 4 आर्टिस्ट, 3 आर्टिस्ट, 5 आर्टिस्ट. अलोन तो आई वाज नॉट एबल टू डू बिकॉज मनी चाहिए, पैसे चाहिए उसके लिए. उस समय भी पैसे लगते थे काफ़ी. तो स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास 200 रुपये, 100 रुपये नहीं होते थे, तो कहाँ से शो करता. तो ग्रुप शोज़ मैंने उस समय काफ़ी किए हैं, भोपाल में, दिल्ली में, लखनऊ में, ऐसे जहाँ चांस मिल जाता था, आगरा में. तो आई स्टार्टेड डूइंग शोज़ फ्रॉम दैट टाइम ओनली. आपको जो शो हुआ है हम देखा है, और दिल्ली में, बॉम्बे में, और अब्रॉड में अब्रॉड में भी किया है आप शो. तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारा, देखिए, अब्रॉड में शो करना और इंडिया में शो करना, स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस. अभी डिफरेंस क्या है
नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल, सेल तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इंडिया में भी अभी काफ़ी बिक रहा है, आर्ट प्रमोशन हो रहा है, कुछ गैलरीज हैं जो बहुत अच्छा आर्ट प्रमोशन भी करती हैं। लेकिन अब्रॉड में क्या है कि वहाँ पर एक डिफरेंट लेवल पे अवेयरनेस है आर्ट के बारे में, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने भी मैक्सिमम म्यूजियम्स को, एक एक सिटी में 10-10 म्यूजियम्स हैं आर्ट पे, मतलब प्योरली आर्ट। उनका ओल्ड कलेक्शन, मास्टर्स से लेके मॉडर्न तक, इवन गैलरीज, कुछ पर्टिकुलर आर्टिस्ट को उन्होंने छोटा सा म्यूजियम बना दिया, जैसे वैन गॉग म्यूजियम है। जैसे अभी उसका ये कौन सा आर्टिस्ट है, डेमियन हिर्स्ट जो आर्टिस्ट है वो भयानक से रियलिस्टिक काम करता है, उसने अपना खुद से एक छोटा सा म्यूजियम बनाया है। दे हैव सेंस। यहाँ का आर्टिस्ट क्या है कि वो कोई इस तरह के इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करता कि लोग स्टूडेंट्स के लिए सही, लेकिन वो जाके देखें, स्टूडेंट्स देखें तो अवेयरनेस बढ़ता है उससे। तो अभी हमारे कंट्री को ज़रूरत है मैक्सिमम एक अपग्रेडेड म्यूजियम्स खोलने का। अभी कोई म्यूजियम है वहाँ कोई प्रॉपर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बारिंग ए फ्यू म्यूजियम। कुछ एक म्यूजियम है जो बहुत अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन बहुत सारे म्यूजियम से अभी पेंटिंग पड़ा हुआ है, उसमें कुछ गंदा लगा हुआ है, कुछ एनीथिंग, इट इज़ डर्ट ऑन द पेंटिंग, एंड प्रॉपर एसी नहीं लगा है, टेम्परेचर सही नहीं है, दे डोंट नो इवन। तो वो चीज़ को ग्रोथ देने की, इवन सम गैलरीज, गवर्नमेंट गैलरीज, आई एम टेलिंग यू, ये सच बात है कि आर्टिस्ट आता है, अरे इतना बड़ा स्पेस है, तुम 2 छोटे कमरे बना दो, वो बेचारा बाहर कहीं होटल में, महंगे होटल में रुकता है कि उसको क्रेट लाने का, सामान रखने का जगह नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो शो करने नहीं आते बाहर, क्योंकि दे कांट अफोर्ड, वो पेंटिंग करने का कैनवस कलर बहुत मुश्किल से खरीदते हैं। तो उनको चाहिए कि कम से कम इतना तो होना चाहिए गैलरी में। एंड ऐसा नहीं कि गैलरीज को ग्रांट नहीं आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ग्रांट आती ही है गैलरीज को, लेकिन मेरा तो ये सुझाव है, मेरा रिक्वेस्ट भी है कि गैलरीज को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो और बड़ी एग्जीबिशंस होंगी यहाँ, और अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, बिकॉज उनको कोई फैसिलिटी नहीं है उधर। आप समझ रहे हो? तो एक कितना बड़ा बड़ा जगह पड़ा रहता है, 2 कमरे छोटे बना दो, 2 कॉट रख दो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सोना है उधर, खाना वो कहीं भी खा लेंगे। होटल लेते हैं 2000, मिनिमम 1500 से नीचे का होटल नहीं मिलता उनको इतना। मैंने आई हैव फेस्ड इट पर्सनली ऑल्सो व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, कि कैसे शो करें, रुकने के लिए मुझे 25-50 हज़ार चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट को, आर्टिस्ट को कुछ कंसेशन देना चाहिए। अगर वो अपना कैटलॉग दिखाता है, अपना बायोडाटा जमा करता है, तो उसको ये सब प्रमोशन के बिना कल्चर के, बिना आर्ट के कोई भी सोसाइटी आप देख लो, वो ग्रो नहीं कर सकती। ये एकदम रियल फैक्ट है, इसको अभी इंडिया में डेवलप करना चाहिए। सभी आर्टिस्ट को कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप देखो, रिक्शे वालों का है, टैक्सी वालों का है, लेबर क्लास का है, सबका ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो आर्टिस्ट समाज से कुछ ले रहा है, उसी को वापस दे रहा है, उसके लिए तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि कल्चर आपकी माइंड को रिफाइन करता है, आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। अब तो यहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं, देश विदेश में बहु एग्जीबिशन किए हैं। तो इंडिया का टेम्परेचर, इंडिया का आबोहवा और फॉरेन का आबोहवा बहुत डिफरेंस है। आप ऑयल माध्यम से काम करते हैं, ये ऑयल माध्यम को और कोई रेस्ट्रिक्शन है, उसके फंगस लग जाते हैं, उसका ड्राई हो जाते हैं, क्रैक आ जाता है, जाना के होता है, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? इसको एक्चुअली में आजकल जो एकेडमी को देख रहा हूँ, वो उसके बाद फॉरेन में जाएंगी, ऑफकोर्स जाएंगी। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, इस टेम्परेचर तो पेंटिंग को
ये टेम्परेचर तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है यहाँ इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं। आप समझ रहे हो, आई एम स्टेइंग इन मुंबई। मुंबई में स्टे करने की वजह से क्या है, मेरा पेंटिंग्स रेंज बहुत फेस करना पड़ता है, उसको मॉइस्चर है मेन। तो मैं इनको मैक्सिमम जितना पॉसिबल होता है, मेरा तो स्टूडियो पूरा शीशे से बंद है, तो इनको रोल प्रॉपरली हैंग करता हूँ, या तो क्लिप से एक ऐसा वो लेकर क्लिप से हैंग करता हूँ और उसमें क्लैंप लगा के उसको हैंग करके बट चारों तरफ से कवर करके रखता हूँ कि डायरेक्ट मॉइस्चर ना जाए। हालांकि मेनी ऑफ माई पेंटिंग्स कुछ डैमेज हो जाता है, कभी कुछ तो उसको फिर तो रिस्टोर करना पड़ता है कि डिफरेंट चीज़ें क्लीन करके फिर उस पर अगेन रीटच करके फिर वार्निश करना पड़ता है। बट आफ्टर मेनी ईयर्स, वो 1-2 साल में नहीं होता, कभी कभी मॉइस्चर किसी पेंटिंग में लग ही जाता है तो वो करना पड़ता है, उसे रिस्टोर करना पड़ता है। अच्छा, आप तो हम पेंटिंग के माध्यम से हर एक माध्यम है, ऑयल माध्यम है, एक्रेलिक है, पेस्टल है, वाटर कलर है, आप क्यों ऑयल चूज़ करते हैं? ऑयल इसलिए चूज़ करता हूँ कि मुझे बिकॉज मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ कि ऑयल मेरे एक्सप्रेशन को जो टेक्निक है ना वो बहुत सूट करता है। भले ही इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समटाइम्स किसी पेंटिंग में 15-15, 20-20 दिन लग जाता है, बट ऑयल मेरी माइंड सेट को, मेरी इमेजिनेशन जो इमेजेस होती है उसको वो सूट करता है। जो टेक्सचर, जो स्मूथनेस, समटाइम्स जो लाइट मैं चाहता हूँ वो मैं बहुत अच्छे से ऑयल में यूज़ कर सकता हूँ। इट इज़ माई माइंड सेट एंड मेंटली एंड अदर थिंग। एक्रेलिक वाटर कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल मीडियम, आई लव दैट। मैंने छोटे छोटे बहुत सारे वर्क्स किए, वो अब नेक्स्ट टाइम लाऊंगा। एंड ये जो एक्रेलिक है ये थोड़ा प्लास्टिसिटी, इसमें प्लास्टिक टच बहुत है। इट इज़ वेरी मच लाइक प्लास्टिक। इफ यू सी द सर्फेस, आई हैव पेंटेड a lot of painting, but I am not happy with that material. एक्चुअली आपको ऑयल हम देखते हैं, आप ऐसी तरह से ऑयल के कैनवास में यूज़ किया है, उसका एक अंतर से एक उज्जवल आते हैं, उसका वो कलर हमको धक्का मारते हैं। हाँ राइट। इतना फ्रेश कलर, इतना उज्जवल कलर आप कैसे कैनवास में? It is a type of technique. For that you have to have a lot of patience. ऑयल ऐसे माध्यम है, जब हम उसका कलर कैनवास में लगाते हैं, उसके बाद वो ड्राई हो जाता है, 10 मास 20 मास में वो ड्राई हो जाता है। तो आपको जो पेंटिंग देखता है वो कलर को एक उज्जवल, वो किंतु मैट नहीं हुआ, नहीं, हाँ उसका उज्जवल सेम ही सेम है। हाँ। ये कैसे आप करते हैं? ये इसलिए रह जाता है क्योंकि ये मेरा वो जो है लेयर्स पे है। तो लेयर जो डार्केस्ट टोन है, डार्केस्ट टोन से हाईएस्ट टोन तक जाते हैं। जो ऑयल कलर में मैक्सिमम हाईएस्ट टोन आता है, वो कहाँ पे हाईलाइट लगानी है, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उज्जवल आप जो बोल रहे हो, उज्जवल इसीलिए रहता है कि हाईएस्ट टोन उस पर लगी रहती है। वो हाईएस्ट टोन को रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, तो वो पूरा पेंटिंग डैमेज हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो दैट इज़ वाई एंड द वे आई यूज़ द कलर, आई गो विद द कंट्रास्ट, सो स्लोली जाता हूँ। तो जहाँ कंट्रास्ट है एकदम से हाईलाइट लगाता हूँ, तो हाईलाइट विद कंट्रास्ट एक मिस्टिकल कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं ऑयल कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য।